Welcome back, students, to our next class of quantum mechanics. In this class, we will cover various important topics. First of all, I am going to open our syllabus. So here you can see the yellow shaded portion we have completed, and in previous lecture we have seen about the Dirac's Brass and Ket notation for vectors and their properties. Okay, and we have also seen about the Ket vectors as a column matrix and Bra vector as a row matrix. So today's session based on the operators as a matrices and the matrix form of the wave function, and what is the unitary transformation and what is the unitary operator. Okay, and how can we use this in our upcoming topics. Okay, so I'm going to open our first topic, which is matrix form of the wave function. Then we will see about the operators as a matrices, and then after that we will discuss on this unitary transformation. What is the unitary transformation? Okay, so you can see here, so you can see here the page of the matrix representation of Katz and Bra or wave function. Okay, you can also say that it is a matrix representation of wave function also. You can also say that. Okay, so here you can see uh, I'm just taking a wave function. Okay, psi. You can see here psi, and I'm operating the identity operator on this. Okay, so we have seen about this. Okay, if I operate this type of operator on a function, wave function, okay, then we will see it gives a eigenvalue with the eigen function phi. Okay, so how can it be done? So here you can see just I'm just multiplying this, or I'm just operating this on the wave function. Okay, so what it becomes, you can see here like this. Okay, and I'm just writing this as an. Okay, I'm just writing this like this. So you can see here what is the an here. An is the eigenvalue which is equal to this. Okay, and these vectors become like this. Okay, if if the value of this operator after operating the after operating on the wave function, okay, it return back the same wave function here, then you can see that you can say that the operator this operator is shows the completeness. Okay, अगर आप लोगों ने अगर इसको अगर आप लोगों ने मेरा कंप्लीटनेस का लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि अगर ये जो ऑपरेटर मैंने ऑपरेट किया हुआ है इस वेव फंक्शन के ऊपर, अगर ये सेम टू सेम वेव फंक्शन यहाँ पे दे देता है विदाउट किसी आइजन वैल्यू के, सपोज आइजन वैल्यू 1 देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर है ये शो करता है कंप्लीटनेस। क्या शो करता है? ये कंप्लीटनेस। ठीक है ना, तो कंप्लीटनेस का ये एक कंसेप्ट है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किसी भी वेव फंक्शन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरीका था कि अगर आप किसी ऑपरेटर को अगर आप किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर वो कुछ आइजन वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेटर कुछ वर्क कर रहा है इस वेव फंक्शन के ऊपर और उसको चेंज कर रहा है दूसरे वेव फंक्शन में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी वेव फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर एक वेव फंक्शन इस तरीके से है, ठीक है ना, विथ आइजन वैल्यूज a1 a2 और an। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो ये ए एन है, क्या है? एन। तो एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? एन की वैल्यू में भी 0 1 2 अप टू एन हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है इन्फिनिटी।
तो ये तो ठीक है कि हमने n के लिए कंसिडर किया तो ऐसे लिख लिया, लेकिन अगर वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक रही या फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक रही, तो फिर उसको हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो अभी ये जो है, अभी ये जो मैंने ए एन बताया, ये आइजन वैल्यू की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है ना, इसको हमने ए एन कंसिडर किया हुआ है। तो हम लोग किसी भी वेव फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी देखो, अभी अगर आप इसको अभी ये केट के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, ये केट के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप इसको आप कन्वर्ट करोगे ब्रास के कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखो, अगर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ब्रास में, तो क्या होगा कि ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रो में, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें चेंजेस देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से हो जाएगा ये, साई 5 1, साई 5 1। ओके, एक मिनट, सॉरी, 1 सेकंड। हाँ, साई 5 1 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो ये पहले 5 1 एग्जिस्ट कर रहा था वो केट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वेव केट नोटेशन है वो ब्रास कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सीधा है, ठीक है। और ये जो आइजन वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ये ली हुई है, ठीक है ना, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। वो भी कब होगा? अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तब, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जस्ट इसको फ्लिप किया है केट टू ब्रास कंडीशन में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि देखो इस तरीके से ये चेंज हो गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पर देखो इस तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, इसमें इसी सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बस ये जो यहाँ पर जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम लोगों ने रो मैट्रिक्स में इसको क्या किया हुआ है, इसको कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो आइजन वैल्यूज का जो कॉलम मैट्रिक्स था ये आपका रो में कन्वर्ट हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बिकॉज ए वन ए टू एंड अप टू द ए एन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, so using this representation, we see that a bra and ket notation is a complex number equal to the matrix product. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का था, ठीक है ना। A1 A2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसको इसका अगर प्रोडक्ट लें, ठीक है ना, इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट लें इसका फाइ के साथ में, ठीक है ना, किसके साथ में? फाइ के साथ में। तो देखो अगर इसका हम प्रोडक्ट लें फाइ के साथ में, तो देखो क्या मिलता है, ये आपका रो मैट्रिक्स और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करना है, इसको इस तरीके से 1 बाय 1 इसको प्लस करते जाना है। तो आप देखोगे कि ये जो है ये पूरा समेशन में चला जाता है, मतलब पूरा एडिशन का अपने को टर्म मिलता है, हम सबको यहाँ पे एडिशन का टर्म मिलता है, तो इसको समेशन में लिखा हुआ है। ओके, तो ये A1 और ये BN का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये AN का और BN का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्या परफॉर्म नहीं कर सकते? रो का रो के साथ में मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते, इसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और दूसरा, कॉलम और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एक मैट्रिक्स के बारे में, एक मैट्रिसेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमेशा कॉलम और रो का हो सकता है, कॉलम और रो का हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर रो और कॉलम का हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन रो और रो का नहीं होगा, कॉलम और कॉलम का नहीं होगा, लेकिन रो और कॉलम का हो सकता है, कॉलम और रो का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ये एडिशनल आपको थोड़ा सा अवेयर कर दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी ऑपरेटर फॉर्मलिज्म में। ओके, 1 सेकंड। ओके,
तो ये था। अभी अभी ये देखो, इसके आगे है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर क्या है। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, मैं रेड से लिखता हूँ इसको। एक ऑपरेटर लिया है मैंने, क्या लिया है, ऑपरेटर, और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई किया है दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये जो है ये आए, तो ये कंप्लीटनेस का एक प्रॉपर्टी है कि ये जो वैल्यू, ये जो है ये प्रोजेक्शन बताता है आपका कभी भी, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। और ये अगर आई होगा मतलब इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी बताता है, कंप्लीटनेस की। तो इसके लिए आपको लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा कंप्लीटनेस का, तो आप वहाँ पे जाके ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। और अगर नहीं भी टॉपिक समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए आप। इस नंबर पर आप इसको नोट डाउन कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर जो है आई की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया हुआ है, लेफ्ट से भी इसके ऊपर अप्लाई किया और राइट से भी इसके ऊपर अप्लाई किया, तो हमको मिला क्या आखिर में। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको आखिर में ये मिलता है, ठीक है ना, जो कि मल्टीप्लिकेशन होता है किसका किसका, ये होता है फाई एन का, ठीक है ना, और ऑपरेटर ए का, ठीक है, और फाई एम का, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जब आप इसको सिंपली इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। ओके। तो अभी इसके बाद में देखो इसका हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल सा है। अगर हम लोग किसी भी ऑपरेटर का, अगर हम लोग अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको हम लोग एक्सपांड भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। बेसिस जैसे कि मैं अगर E1 लूँ, तो अगर ये बेसिस है, ठीक है ना, और ये ऑपरेटर भी है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिस है, अगर आप इसका खुद के साथ में अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको 1 मिलेगा हमेशा। क्या मिलेगा, 1। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को ये फॉलो करता है, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड होते हैं सब। तो यहाँ पे इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं इस ऑपरेटर को एज अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं, A11 A12 A13, ये सब एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है इसी कि अगर आप आए किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैंने ए के ऊपर इसको अप्लाई किया, इसको ऑपरेट किया ए के ऊपर, तो उसको अनचेंज्ड, उसको क्या करता है, उसको लीव करता है, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आई को अगर आप इस ए के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो इसको अनचेंज छोड़ेगा ये। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट मैट्रिक्स, ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। अगर आप यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको सेम मैट्रिक्स क्या मिलता है, रिटर्न बैक मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इट लीव्स दैट अनचेंज्ड। ओके। तो किसी भी ऑपरेटर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, उसके बेसिस की फॉर्म में इसको एक्सपांड कर सकते हो, और उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि ये ऑपरेटर, ठीक है ना, और ये है कुछ तो भी इस तरीके से इसका है, ठीक है ना, जैसे कि ये बी जे है या फिर बी सी के है, ठीक है। और एक दूसरा है इसमें, जैसे कि ये L1 है, ये I है, ठीक है, ये L2 है, ये J है, ठीक है, और ये प्लस L3 है, ये K है। तो इसको आप देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑब्वियसली इसको ऐसा लिख सकते हो, ए सॉरी 1 सेकंड, I J K, ओके, A B C, L1 L2 L3, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हो, ओके। तो आप इसको एक्चुअली ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं ऐसा, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हो सीधा सीधा, ए बी सी L1 L2 एंड L3, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी ऑपरेटर को आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये तो था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। और इसके पीछे हमने देखा कि हम किसी भी वेव फंक्शन को या फिर गेट और ब्रास को हम लोग कैसे इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आपको खुद भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो अभी इसके आगे हम लोग जाते हैं कि यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है। तो यूनिटरी ऑपरेटर देखते हैं अभी। तो यहाँ पर जो है यूनिटरी ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स के हम उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज द यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यूनिटरी मैट्रिक्स समझने के पहले आपको यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है पहले तो वो समझना आपको बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये देखो अगर हम कोई ऑपरेटर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने ऑपरेटर लिया, और अगर मैं इसको इसके हर्मिशियन एडजॉइंट से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। अगर कोई ऑपरेटर ये प्रॉपर्टी, ये इस तरीके का फिनोमेना अगर वो शो करता है तो इट शुड बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो और इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो देखो ये एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, इसको आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, वो अनचेंज्ड रहेगा, वो इक्वल रहेगा। और दूसरी बात ऐसा कि अगर आपने ये ऑपरेटर लिया हुआ है, अगर इसका कुछ मैट्रिक्स है, तो जब आप उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो इट शुड बी द वन, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हो और अगर वो वन आता है तो इट शुड बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स। एक और तरीका है इसको चेकआउट करने का, ठीक है, ओके। और अगर कोई ऑपरेटर आपने लिया है, अगर उसके हर्मिशियन और एडजॉइंट से आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे होगा। तो देखो सपोज देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/2, ओके, 1/2 1 प्लस i, ओके, 1 माइनस i, ओके, 1 माइनस i, ओके, और ये आएगा 1 प्लस i, ठीक है। तो अभी ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी ये यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करेगा। तो इसको देखो, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका एक हर्मिशियन एडजॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हर्मिशियन एडजॉइंट लेना पड़ेगा सबसे पहले तो जब आप इसका हर्मिशियन एडजॉइंट लोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो हर्मिशियन एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है, ए डैगर इज इक्वल टू वॉट। तो सबसे पहले तो इसका आपको लेना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या फिर इसका ट्रांसपोज भी पहले कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इसका जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो ये जो आई है ये माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस आई, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो माइनस आई है ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस 1 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये 1 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई, ओके। इसका जब हम लोग हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद में इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। तो ए डैगर क्या हो जाएगा, देखो अब इसका ट्रांसपोज करना है आपको। तो देखो 1/2, ठीक है ना। इसका जब ट्रांसपोज करोगे आप लोग तो क्या होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सेम टू सेम रहेगा। ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, बस कुछ ज़्यादा चेंजेस मतलब सेम टू सेम रहेगा। तो इसका ट्रांसपोज भी आप लोग करोगे तो आपको वही मिलेगा,
1 प्लस आई, ठीक है, और 1 प्लस आई, और ये 1 माइनस आई। ओके, ये हो गया, हमने इसका हर्मिशियन जो है हर्मिशियन एडजॉइंट ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या बोलता है कि भाई ए इज इक्वल, सॉरी, ए इंटू ए डैगर क्या होना चाहिए ये, अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मैट्रिक्स इट शुड बी द आई, मीन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर होना चाहिए। तो देखते हैं, इसको करके देखते हैं अगर क्या ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए ऑपरेटर है, सॉरी ये जो ए मैट्रिक्स है, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो उसने ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करती है, इसका मतलब वो यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो देखो अभी, तो यहाँ पर आप हम लोग करके देखते हैं, चलो। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। इसका मतलब क्या लेना है, यहाँ पे देखो 1 प्लस आई, ओके, 1 माइनस आई, ठीक है, और ये 1 माइनस आई, ओके, और ये 1 प्लस आई, ठीक है, ये एज इट इज़ लिखा मैंने, ठीक है, 1/2, और वापस 1/2 क्या, तो वापस 1/2 यही आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, इसको मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, हो नहीं रहा है वो। तो देखो यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली चीज़ आएगी यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, 1 माइनस आई, ठीक है, 1 प्लस आई, ओके, ये आएगा यहाँ पे 1 प्लस आई, ठीक है ना, और ये आएगा 1 माइनस आई, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 1/1 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें ऐड होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये टोटल जो वैल्यू आती है, ये टोटल वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 आती है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसको, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इन दोनों का एडिशन करोगे तो इन दोनों का जो भी है वो 0 आएगा, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे या इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ में करोगे तो यहाँ पर वापस 0 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना। इसका जब आप लोग करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो जब 4 ये बाहर निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 4/4, अंदर बचेगा आपका 1 0 0 1, ओके, इस तरीके से बचेगा ये, ठीक है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि वापस देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये 4 4 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग से ऐसा लिख, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 1 0 0 1। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। क्या है, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑपरेटर नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या कि हमको क्या मिला कि जब हमने ए को ए डैगर के साथ में मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, आई, क्या मिला, आई मिला, ठीक है ना। हमको क्या मिला, आई। इसका मतलब क्या, ए एक क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अभी इसके बाद में देखो, इसमें का एक कैलकुलेशन में आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपकी बहुत सारे लोगों को ये समझा नहीं, ठीक है ना। तो अभी देखो इसका मैं इस
पहले तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन किया कैसे, देखो आप, अगर मैं 1 + i का मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा हूँ, किसके साथ में कर रहा हूँ, इस पहले वाले के साथ में कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये 1 - i, ठीक है ना, प्लस, ओके, प्लस क्या, अब इसका वापस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा ये 1 + i इंटू 1 + i, सॉरी, हाँ, एक सेकंड, इसका इसके साथ में किया, इसका इसके साथ में किया, हाँ, बराबर है, इसका इसके साथ में किया है, ठीक है ना, सॉरी, इसका इसके साथ में किया। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर देखो क्या होगा कि, हाँ हाँ, अभी देखो इसका इसके साथ में करना है आपको, तो 1 - i इंटू 1 + i, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 + i हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को, इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4, चलो करके देखते हैं। 1 × 1 1 -i, ओके, +i, ओके, प्लस, सॉरी, 1 × 1 1, 1 × -i और -i² बोले तो +1, ठीक है ना, और वापस प्लस, तो ये 1 1 1 +i, ओके, -i, ओके, और ये माइनस माइनस +1, ओके, देखो ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो आपको क्या मिला, 4 मिल गया। इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को आप यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर यूनिटरी है तो ये उसने ये शो करना चाहिए, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, ये शो करना चाहिए, तो a इंटू a dagger it should be is equal to I, then we can say that the matrix A is what, unitary matrix, ओके, तो ये उसने फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन था इस, ओके, तो हम लोग ने देखा अभी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, ये कितना आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या कि ये ए क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को आपको चेक करना है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आपको उसके हर्मिशियन एडजॉइंट के साथ में क्या करना पड़ेगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इट शुड बी आई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, इसका एक डेरिवेशन भी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो आप अटेंड करो, दूसरा वाला भी, इसका आने वाला वीडियो भी आप लोग देखो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि व्हाट इज द यूनिटरी मैट्रिक्स, इट शुड बी फॉलो दिस, ठीक है ना, उसने ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, तो एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।